सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पहल पुरिए पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना। पहल पुरिए पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा। असगा अस उसगा, हर का बागरा। नाचै पिंदी मैं सागरा रहाऊ। नचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कना। तर्क ना चा परमिया चा, केसवा बचौनी अये मैये एक आन जियो। पिंदी उबकले संसारा, परम परम आए तुम चे द्वारा। तू कुनरे मैं जी नामा, हो जियाला ते निवारणा जम कारणा। पिंदी उबकले संसारा, परम परम आए तुम चे द्वारा। तू कुनरे मैं जी नामा, हो जियाला ते निवारणा जम कारणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक। कलयुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रखिक। शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज मीरी पीरी दे शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा है। सिख पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी कथन करते हैं, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। वड्डे वड्डे दलां नूं भन्नण वाले वड्डे जोधे हन
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 693 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਵਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ। ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਵਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਦੇ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 1632 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
ਭਰੋਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ 32 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, 1632 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 66 ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਸਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਵਾਹ, ਤੇ ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤ ਡੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਲੰਬੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਛਲਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਰਹੇ। 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ,
अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने माता जी की कुख नूं भाग लाए ते इस ग्रह नूं पवित्र किया। सो भाव भरोसा इहो जिहा रखना है। अरदास जिहड़े मालक दे चरनां च कर चलिया ना, उन्हां सानूं प्रैक्टिकल करके समझाउणा कीता। मैं भगत नामदेव जी दे अज दे अंम੍ਰਿਤ बचनां दा विस्तार करन तो पहलां अरदासां किवें किवें करनियां, गुरु रामदास पातशाह भी अरदास करते हैं, सानूं अरदास करन दी जुगती दसदे हन। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। भट्ट साहिबान अरदास करते हैं, हम औगण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। भगत रविदास जी अरदास करते हैं धनासरी राग दे अंदर। भगत जी की आखते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजै। दाता जी साढ़े वर्गा गरीब कोई नहीं, तुहाडे वर्गा शहनशाह कोई नहीं। दाता जी मेरे वर्गा भिखारी कोई नहीं, तुहाडे वर्गा दाता कोई नहीं। अब पत्यार क्या कीजै। हे दयालु जी असी पत्यार की कर सकते हैं। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। दाता किरपा करो मेरा मन जेड़ा आप जी दे बचनां दे नाल मन जावे, ऐसा पूर्ण कर दिओ। हों बल बल जाऊँ रमैया कारने। हे दाता जी मैं आप जी तो बार बार कुर्बान बलहार जावां, कारण कवन आवोल। पर किहड़े किहड़े कारणा करके मैं आप तो बलहार जावां, वो कारण अबोल हन। मैं किवें बोल के दसां, भाव के बड़े कारण हैं जिस करके मैं आप तो कुर्बान जांदा हाँ। तरस करके दाता जी सानू मनुखा जन्म बख्शिया, नेत्र दिते, तुरन वास्ते लत्तां दित्तियां, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात। दाता जी सारियां आप जी ने दातां बख्शियां। ते भगत जी की अरदास करते हैं फिर रहाओ वाली पंक्ति अंदर, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। दाता बड़े ही जन्म हो गए आप जी तो विछड़िया होया नूं। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ तो बाद मनुखा देही प्राप्त होंदी है ना। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म आप जी दे लेखे वास्ते मिलिया है। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। भगत रविदास जी आखते मैं अजे आस रख के जी रहा हाँ, बड़ा चिर हो गया आप जी दे दर्शन देखिया नूं, पर यह जिहड़ा जन्म है ये आप जी दे लेखे लगन वास्ते प्राप्त होया है। ते भगत धन्ना जी अरदास करते हैं। भगत जी आखदे कोई तुहाडी आरती करदा दाता जी, पर मैं ही परमात्मा तेरा आरता उतारदा हाँ। गोपाल तेरा आरता
जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। दाता जो जो तेरी भगती करदे तुसीं उन्हां दे काज सवारदे हो। रहाओ। भगत जी आखदे मैं छोटी तो छोटी वस्तु भी अपने मालिक प्यारे प्रीतम कोलों मंगदा हाँ। दाल सीधा मांगो घीओ, दाल भी दाता जी आप तो मंगदा, सीधा भी, आटा भी, घ्यो भी, हमरा खुशी करे नित जीओ। इस शब्द दे बड़ा गहरा डूंगा भेद है। हमरा खुशी करे नित जीओ। दाता जी जिवें अज कहंदे ना आम बच्चे नूं, किसी बच्चे नूं छोटी जी गल कहो कहंदा मैनूं टेंशन ना दो, मैनूं स्ट्रैस हो गई। भगत जी आखदे हमरा खुशी करे नित जीओ, भाव के दतार पातशाह खुशी खेड़ा बख्शिश करिओ, निराशता ना आवे। अज साइंस आखदी स्ट्रैस आ गया, तनाव आ गया। अज साइंस आखदी HIV एड्स वर्गियां भयानक बीमारियां आ गईयां। अज साइंस आखदी पानी नूं बचाओ गंदला हो रहा। पर गुरु नानक साहब महाराज ने सानू बहुत समा पहला सचेत किया। पवन गुरु पानी पिता, हवा साडा गुरु है। जिवें असीं अपने गुरु की सेवा करते इवें हवा नूं भी असीं सेवा करनी, दूषित होने तो बचाउणा है। पानी पिता, जिवें पिता की सेवा करते हैं, जिवें पिता की करता है, माता पिता की करते आ, साडे शरीर की गंदगी नूं ला के पासे सुट दिंदे आ। पर पिता गंदगी साफ करदा, असीं गंदगी पिता दे उत्ते ते नहीं सुटदे ना। पानी की करदा, पानी साडी गंदगी साफ करदा है, सुचमता बख्शिश करदा। पर असीं की कीता, असीं अज वो सारा पानी, गंदा पानी जिहड़ा वो नदियां च पाता, दरियावां च पा दिता। अज कहंदे जी गंगा मैली हो गई, जमुना पवित्र हो गई। जे गुरु नानक साहब महाराज दे हुक्म नूं मन्निया हुंदा ते अज संसार इन्ना दुखी ना हुंदा। पवन गुरु पानी पिता, पानी साडा पिता सी। माता तरत महत, धरती साडी माँ है। जिवें माँ बच्चे नूं जन्म दिंदी है, फिर दुध भी छकाउंदी है, इसे तरह धरती माता पहला पंजां तत्तां तो शरीर बनदा, फिर ये धरती माँ अपनी छाती चों अनाज उगा के साडी परवरिश करती है। माता तरत मात, दिवस रात दाई दाया, खिले सगल जगत। दिन ते रात की करदे हन, खडावी ते खडावे हन। दिन खडाउंदा रहिंदा ते रात अपनी गोदी च सवा लैंदी है। दिवस रात दोएं दाई दाया, खिले सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर। सो गुरु नानक साहब महाराज ने सानू बड़ा सुचेत किया। HIV एड्स वर्गियां बीमारियां, स्ट्रैस वर्गियां बीमारियां अज नहीं आईयां, ये जदों संसार बनिया उहदे नाल ही ये सारियां आईयां। पर यह कह सकते साइंस ने नाम अज दे दिता। इदां मरन वाला जिहड़ा है इनू आ बीमारी है। पहला कुष्ठ रोग हुंदा सी, अज होर नाम दे दिते। पहला तैया ताप हुंदा सी, अज टाईफाइड नाम दे दिता गया। वाहिगुरू। ते कोई आखे कि टाईफाइड अज आया, नहीं। जे ये बीमारियां अज आईयां हुंदियां, स्ट्रैस अज आई हुंदी, ते गुरु नानक साहब महाराज नूं स्ट्रैस बारे सानू सचेत करन दी लोड़ क्यों पैंदी। तीने ताप निवारण हारा, दुख अंतां सुख रास, तां को बिगन ना को लागे जाकी प्रभ अगे अरदास। इस स्ट्रैस नूं सतगुर ने बयान किया है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है जल में जन तो पाए न, तिना पी रोजी दे। तू कादी चिंता करदा, उन्हें ते जल में जंतु पैदा किए, उन्होंने भी रोजी दे रहा है।
सो गुरमुख प्यारिओ, जे HIV अज आईयां हुंदियां बीमारियां तो गुरु साहब नूं सानूं पहलां क्यों समझाउणा पैंदा, एका नारी जती होवै, देख पराइयां चंगियां मावां धीआं पैणा जाने। सो सतगुरु जी समझाउणा करदे हैं। किसी दिन मैं अपना स्ट्रैस के विषय ते विचार करांगा। इंग्लिश दे विच स्ट्रैस है, हिंदी च तनाव है ते पंजाबी विच चिंता है। इहदा इक्को एक इलाज है, परमात्मा दा चेता भुल गया तो चिंता आउणी ही आउणी है। जदों उस मालक दा चेता सी ते भाई साहब भाई मनी सिंह सिੱਖੀ ਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ बंद बंद कटवा टुकड़ियां चों सुखमणी साहब दियां 6 अष्टपदियां गा रहे सन। जदों परमात्मा दा चेता सी उहदे नाल लिव लगी हुई सी ते भाई साहब भाई मती दास जी अर्धो अर्ध चरियो सो डारा, अर्धो अर्ध चरायो सो डारा, परियो पृथ्वी पर हवै दो फारा, दोनों तन ते जपजी पढ़ै, हीरत सबके चरज बढ़ै। दो टुकड़े करके भाई मती दास नूं धरती ते सुटिया। दोनों टुकड़ियां चों इक्को ही आवाज़ आउंदी सी, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिन्हां महापुरुषां दा अज शहीदी दिहाड़ा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर दा, जमूरां नाल मास नोचिया गया, पुत्र दा कलेजा मूँह विच पाया गया। मैं इत्थे विषय तो हट के एक बेनती करा, अरदास का विषय चल रहा है। गुरमुख प्यारिओ, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बड़े तसीहे दिते गए, कहंदे बंदा सिंह डोलदा नहीं। किसी काजी ने आख्या, ये बंदा सिंह किवें डोलेगा, इहदी जुगती मेरे कोल है। मैं इहदा इतिहास वाचिया, ये रजौरी दियां पहाड़ियां दा जंपल सी, कश्मीर दा राजपूतां दा मुंडा सी। बाल अवस्था च एक हिरनी नूं तीर वजा, मरी हिरनी दे 2 बच्चे पैदा होए, दी अखां सामने दम तोड़ गए। इहदा हिरदा बड़ा कोमल सी, इन्हें तीर कमान तोड़ के सुट दिता ते बैरागी बन के जंगलों नूं तुर पिया। अज ते इहदा बच्चा साडे कब्जे विच है। ये हिरनी दे बच्चियां दा दुख नहीं सी देख सकिया, अपने दा किवें देखेगा। 4 साल दा बाबा अजय सिंह लिआंदा गया, बाबा बंदा सिंह बहादुर दा सपुत्र। कहंदे एक खंजर लै ते बंदा सिंह इहदा कलेजा बाहर कढ दे। बाबा बंदा सिंह बहादुर आखदे, ये तो मेरा अपना पुत्र है, इहदी जगह जे बादशाह तेरा पुत्र हुंदा जां काजी जां जलाद दा पुत हुंदा, मैं तां भी नहीं सी इहदे ते वार कर सकदा। मेरे मुरशद दा, मेरे गुरु दा हुक्म है। आखदे ते सानू पता तेरा हिरदा कोमल बड़ा, तू हिरनी दे बच्चे मरे हुए के बैरागी हो गया सी। कहंदा नहीं, मेरे गुरु दा हुक्म है, बच्चे ते वार नहीं करना, औरत ते वार नहीं करना, बजुर्ग ते वार नहीं करना, भजे जांदे दी पिठ ते वार नहीं करना, शरण आए ते वार नहीं करना, शस्त्रहीन ते वार नहीं करना। बच्चा आख्या मेरे गुरु ने, भावें बच्चा अपना होए भावें दुश्मन दा होवे। कहन लगे इहदा हिरदा बड़ा कोमल है, ये हिरनी दे बच्चियां दा दुख नहीं सह सकिया, अपने बच्चे दा किवें सहेगा। जलाद नूं हुक्म आया, इस बच्चे दा कलेजा बाहर के कढ़ के रख दे। फिर वेख बंदा सिंह किवें तड़फदा है। खंजर मारी गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे 4 साल दे पुत्र दा कलेजा बाहर कढ़िया गया। बाबा जी दे मूँह विच तुन्निया गया। चूलियां भर के खून दियां मारियां गईयां नेत्रां दे विच। ते जदों वेख्या बाबा बंदा सिंह बहादुर वल, ते जलाद ने पुछया होएगा ना बाबा जी नूं कि बंदा सिंह की महसूस हो रहा, किवें फील कर रहा। ते कवि दी उडारी है, मानो बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जवाब होएगा
कि मैनू इउं फील हो रहा, इउं महसूस हो रहा जिवें अज मैं इम्तिहान चों पास हो रहा होवां ते मेरे दसम पिता कलगीधर पिता जी अज अमृत दे छिट्टे फिर मेरे नेत्रां विच मार रहे हैं। अमृत दे छिट्टे जदों अखां च मारे, अखां गहरियां हो गईयां, दुश्मन दा रस्ता मल खलो गईयां। कहंदे अमृत दे छिट्टे किवें हो गए? कहन लगा मैं इस पुत्र नूं अमृत छकाया, इहदा खून भी अमृत बन चुकिया है। कहंदे बंदे एक गल दस, तू बाल अवस्था दे विच एक हिरनी दे बच्चियां दा दुख नहीं सी सह सकिया, तीर कमान तोड़ सुटिया सी, बैरागी हो गया सी, ते हुण ऐसा की हो गया तेरे अपने बच्चे दा भी तैनूं दुख नहीं लग रहा? कहंदा उदों मैं कन पाटे साधुआं दा चेला सी, फिर जानकी प्रसाद वर्गियां दा चेला बनया, औगड़ नाथ दा चेला बनया, अज मैं बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह दा चेला हाँ। अज मैं सरबंस दानी दा चेला हाँ, जिन्हें सारा परिवार ही साडे तो वार दिता, ते जिन्हें साडे वल लंबी बांह करके आखिया इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पया जीवत कई हजार। कहंदे अज मैनू ये माया दा परिवार दा मोह सिੱਖੀ तो डला नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मैनू प्रैक्टिकल करके दसिया सिੱਖੀ एवें कमाई जाती है। सो गुरमुख प्यारिओ, अरदास के विषय वाल मैं आप जी नूं वापस लैके आवां। अज दे विषय वाल, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया शादन नीका, नाज मंगो सत सीका। भाव के भगत जी कहते मैं हर वस्तु अपने गुरु तो मंगदा, साडे वांग नहीं कि जिथे जाओ उत्थे ही लैना लगियां होंदियां, इत्थे भी चले गए उत्थे भी चले गए। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक गऊ जां मझ मैं मंगदा, वो भी दाता लवेरी मंगदा जिहड़ी दुध देण वाली होवे। एक ताजन तुरी चंगेरी, एक अरबी घोड़ी भी दिओ चंगी जी, जिहदे घोड़ी ते चढ़ के मैं अपने सारी खेती की देख रेख कर सकां, ते इनू सारे नू संभालण वास्ते फिर भगत जी कहंदे घर की गीहन चंगी। एक चंगी घर वाली भी कहंदे मैं दाता तेरे दर तो मंगदा, जन धन्ना लेवे मंगी। भाव अर्थ यह है कि भगत धन्ना जी कहंदे हर वस्तु मैं मालक आप दे दर तो मंगदा। अज भगत नामदेव जी अरदास कर रहे हैं। अरदास जदों असीं रोज़ाना करते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां दे विच, नामी पातशाही तक अरदास बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आप लिखी है दसम ग्रंथ दे विच। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पहला उस अकाल पुरख नूं याद करते हैं। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, कहते फतेह किहदी है? वाहिगुरु दी है। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, श्री साहब श्री भगवती जी सहाय। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज श्री साहब भगवती नूं बड़ा वड्डा मान बख्शिश करते हैं। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै। गुरमुख प्यारे, जदों असीं अरदास करते हैं ना, नावीं पातशाही तक अरदास जिहड़ी है इहदे च हो सके एक लगा मातर भी अगे पिछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नावीं पातशाही तक अरदास कलगीधर पिता जी ने आप लिखी हुई है। वैसे तो जिहड़ी पंथ प्रमाणित अरदास है वो सेम होनी चाहिए, उहदे विच वाद घाट नहीं करनी चाहिए,
पर फिर भी अगे गुरसिखा ने लिखी है, पर नावीं पातशाही तक गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आप उचारण की, आप लिखी है। कई बार असी पता की करते हैं, अरदास की रूप रेखा बदल दिंने आ। जिवें अरदास शुरू हुंदी अगे जाके प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। हुण ये गुरु शब्द लग्या गुरु नानक साहब वास्ते। फिर अंगद गुर ते जिहड़ा आ ते शब्द लग्या, ये अगलियां सारियां पातशाहियां वास्ते गुरु शब्द लग गया। अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है। कई बार कई वीर श्री हरकृष्ण साहब के नाम नाल फिर इत्थे गुरु शब्द ला दिंदे है गुरु साहब। पर जे असी कोई गुरु अमरदास पातशाह ना विच गुरु लाएगा, कोई गुरु रामदास पातशाह ना, अरदास की रूप रेखा अलग अलग हो जाएगी। एक पिता एक इसके अम्बारक तू मेरा गुरु हाय। श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है। कई वीर इत्थे गुरु शब्द लाउंदे हन, पर नहीं, जिहड़ी 10वीं पातशाही ने अरदास लिखी वो सेम उस तरह करनी चाहिए। तेग बहादुर सिमरिया करनौन दे आवे धाए, सब थाएं होए सहाय। इत्थे तक। इस तो अगे गुरसिखा ने शब्द शामिल किए। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाएं होए सहाय। 10 पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे कई बार असीं आख दिने दर्शन दीदार का ध्यान, दर्शन दीदार नहीं है इत्थे शब्दन पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। पहला पैरा जिहड़ा आउंदा अरदास का, अज अरदास का विषय मैं तां जिक्र कर रहा। पहला पैरा अरदास का आउंदा है पंजां प्यारियां। सब तो पहला गुरु साहब जी महाराज ने पंजां प्यारियां का जिक्र किया, 4 साहिबजादियां। उस तो बाद जेड़े सब तो पहला पंथ का जिक्र आया, पंजां प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां। 40 मुक्ते जिहड़े मुक्तसर साहब की धरती ते कुर्बान है। हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया, वंड के छकिया, देग चलाई, तेग वाई, दे के निट कीता। तिन्ना प्यारे शहरां की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। भाव कि वो एडियां वड्डियां कुर्बानियां क्यों किवें कर गए? उन्होंने वाहिगुरू बोलिया, तुसीं भी उन्हां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्मे शीश दे उत्ते बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चरवाए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, पुठियां खल्लां लवाइयां, देगां चुबले, गुरधामां लई कुर्बानियां कीतियां। तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗਿਆਂ ਦੀ कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। एडियां वड्डियां कुर्बानियां किवें कर गए? उन्हां वाहिगुरू जपिया, तुसीं उन्हां दी कमाई का ध्यान धर के वाहिगुरू जपो, तां करके एडियां वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां कर गए। हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपे, वंड के छकिया, देख चलाई, तेग वाई, देख के निट कीता। तिन्हां प्यारियां शहरां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। फिर तीसरे पैरे में जिक्र करते हैं, अगले पैरे में 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सारे सरबत खालसे की आप दे चरनां च अरदास है। की मंगया सरबत खालसा वास्ते अरदास करके? असी मंगण आउने ना दातां। पुरातन समय च बजुर्ग आखते होंदे सी नामदान की दात बख्शो, पर की अज असी नाम मंगते हैं? सारे खालसे वास्ते की मंगया पंथ ने? प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 मन करके, तन करके, बाणी करके,
जीवन करके वाहिगुरू चेते आए। वाहिगुरू 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 नाम चेते आवे। चेतावन का सदका की मिले फिर पंथ नूं? सर्ब सुख होवे, सारे सुख होण। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रहा। जिथे जिथे आप जी का खालसा विच रहा उत्थे उत्थे रखिया करो। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। सारियां वास्ते मंगया। फिर अगे की मंगया? सिखां नूं सिੱਖੀ दान। अरदास का विषय चल रहा, जरा ध्यान दिओ। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान। हुण केस सानूं किवें मिले हन? ये सानूं दान विच मिले हन गुरु साहब दे कोलों। ते दान कौन दिंदा? हमेशा अमीर आदमी किसी गरीब नूं दान दिंदा है। असीं कई वारी कह दिंदे आ मैं गुरुद्वारे दान दे रहा। नहीं गुरमुखो, दान हुंदा जिहड़ा अमीर गरीब नूं दवे। ये तो इवें हो गया ना जिवें किसी दा पिता कोई किसी नूं 10,000 रुपया अपने बच्चे नूं दे दवे तो 10,000 चों 100 लिया के आखे बापू जी मैं तुहानूं दान करता 100 रुपया। दातां तो उहदे दर तो ही मंगदे आ ना। इत्थे आके अरदास करनी, दाता जी आप जी दियां बख्शियां बेअंत दातां विचों आप जी दी किरपा बख्शिश सदका तिल फुल भेटा गरीब जान के प्रवान कर लेना। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान। केस सानूं दान विच मिले हन। ते गुरमुख प्यारिओ, जे किसी नूं कोई दुनियादारी दा अमीर बंदा 500-700 रुपए का गिफ्ट लिया के भेंट कर दवे, दान कर दवे गरीब नूं अमीर, तो वो जो उस वेले चुक के उहदे सामने मारे, क्या हिम्मत है किसी दी मारन दी? कि उसकी खुशी मिलेगी? पर सानू सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने एक केस दान विच दिते हन। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान। रहत भी दान विच दिती है। जे असी रहत रखी हुंदी ते अज साइंस नूं क्यों होका देना पैंदा कि बार बार हथ धोवो, करोना आ गया। इस ਸਰੋਪਾਓ साहब नाल मूँह बनन दी ते साडी वैसे ही मर्यादा सी। ਸਰੋਪਾ ते हर सिख गल विच रखदा सी इसे करके। जिवें एक दरख्त नालों टाहनी टुटदी ना, पहला कमला जांदी फिर गल सड़ जांदी, उहदा नामो निशान मिट जांदा। असीं अपने गुरु तो टुटे, असीं अपने विरसे तो टुटे, साडा तां ही हशर होया। रहत दान, विवेक दान, विसाहा दान, भरोसा दान। ते की मंगया फिर? दाना सिर दान। सारियां दाना तो एक कीमती दान है, वो केड़ा है? नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के पवित्र दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। इन्ने जेड़े दान दिते ना कलगीधर पातशाह ने, इन्हां नूं संभाल के रखना। इन्हां दी संभाल करोगे, सिੱਖੀ संभालोगे, केसां दी रहत दी संभाल करोगे, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के पवित्र दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। ये सारियां वस्तुआं दान च मिलियां, इन्हां नूं संभाल के ते किवें संभालिया जाना? धर्म का जयकार जिहड़ा वाहिगुरू वो बोलोगे तां संभालिया जाना। जे जपोगे, गुरबाणी नाल जुड़ना करोगे, सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत पाते रखिया वाहिगुरू। सो गुरमुख प्यारिओ, असीं अरदास का जिक्र कर रहे। भगत नामदेव जी ने की अरदास की? समा समाप्त है।
5-7 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੜ ਕੇ ਕੰਢੇ ਅਟਕਦੇ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪਈ ਦੇ ਦਲਾਸਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਅਟਕਦਾ ਘੇਰਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੋਂ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸਾ, ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤਰਿਆ ਪੈਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ। ਲੈ ਲਸ਼ਕਰ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਲਸ਼ਕਰ ਖਾਸਾ। ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂਚੇ ਹੰਸਾਂ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਹੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਅੱਜ ਹੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੰਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਤਰਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾਂ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਹਰ ਨਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੰਸ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਨਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬਿਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾ ਦਮਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਏ। ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੰਡਾਂ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਟਿੰਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਾਓ। ਨਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਕਨਾ, ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ ਭਰਮੀਆਂ ਚਾਹ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਤਰਕ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਭਰਮੀਆਂ ਚਾਹ, ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ। ਕੇਸਵਾ ਬਚੌਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ
पिंदी उब कले संसारा, परम परम आए तुम चे द्वारा। हे दाता जिवें खूह विच टिंडां गईयां, पानी दियां भर के बाहर आईयां, फिर खाली हो के थले गईयां, फिर बाहर आईयां। भाव के समझण वास्ते एक उदाहरण है। उन्हां दा गेड़ा लगातार वज्जा रहा। इस तरह जीव का भी 84 लाख का गेड़ा वज्जा होया, कदे किसी जाम में, कदे किसी जन्म में। परम परम आए तुम चे द्वारा। हुण दाता ये भरम भरम के तेरे दर ते आ गया हाँ, किरत कर्म के विछड़े, कर किरपा मेलो राम। सतगुर आखदे दसां ही दिशा जिवें कोई भरम किया जाए, दह दिस परमे थाके आए प्रभ की शाम। चार दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ते चार उन्हां दे कोण 8, धरत ते आकाश 10। दसां दिशा भरम के जिवें कोई सेंटर बिंदु ते आ जाए, इवें दाता 84 लाख जोनी तो बाद हुण मनुखा जन्म, हुण ये तैनूं मिलण दी वारी है। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम। गुरु अर्जन देव पातशाह भी आखदे हन, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। मिल साध संगत अज केवल नाम, परम परम आए तुम चे द्वारा। दाता परम परम कि हुण तेरे दर ते आए हाँ, भाव कि मनुखा जन्म उसनूं मिलन दी वारी है। ये दरवाज़ा है उस मालक नूं पहुँचण दा, उहदे नेड़े जाण दा। ते कहंदे परमात्मा पुछे तू कौन है, तू कुन रे, तू कौन है रे जिन्हें मेरे ही दर दा सीधा दरवाज़ा खड़काया। ते भगत जी आखदे मैं जी नामा, मैं नामदेव हाँ जी। ते कहंदे ऐसा मौका मिल जावे, रब आवाज मार के पुछे तू कौन है, तो मैं आखा मैं जी नामदेव हाँ, ते नाल ही मैं बेनती कर देवां, हो जी आला ते निवारणा जम कारणा। हो जी मेरे प्यारे प्रीतम जी, जे तुसा मैनू पुछ ही लिया तू कौन है, तो मैं नामदेव हाँ, कृपा करो हुण मेरा जमा तो निवारणा कर दिओ। सतगुरु कृपा करन। अज दा जो दिहाड़ा है मेरी पीरी दे शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा है, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का अज शहीदी दिहाड़ा है। अज ये जिहड़े जमीनां की गल करते हैं, पंचायतां की गल करते हैं, ये जमीनां दे मालक सानू बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाया सी। ये पंचायती राज उन्होंने स्थापित कीते सी। उन्होंने पंचायतां नूं ये पावरां दित्तियां सी कि जिहड़े तुहाडे इलाकिਆਂ दे झगड़े होणगे वो मेरी कचहरी च आउण दा लोड़ नहीं, खालसे दी कचहरी च तुहाडे पिंड दे विच 5 चुने जाण, एक उन्हां दा 5 दा सिरमौर जरनैल चुनिया जावे। 5 मैंबर जिन्हों कहिंदे आ पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगे मान। कहिंदे 5 चुने जाण पिंड दे विच, उन्हां दा एक 5 दे उत्ते सरपंच होवे, पंचां ते सरपंच मुखी उन्हां दा फैसला जिहड़ा कीता होएगा उहनूं असल च अज भी गुरमुखो कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकदा। जिहड़ा पंचायत दा फैसला, ये सारी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी सोच सी। उन्होंने पंचायतां दा निर्माण कराया, उन्होंने वाहीकारां नूं, काश्तकारां नूं जमीन दे मालक बनाया। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर दा शहादत दा दिहाड़ा है। बाबा जी की शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम है। सतगुरु कृपा करन। ऐसे योधे महाबली सूरबीर अज असीं अक्सर आख दिंने आ फिर आउणा पऊ फलाने सिंह नूं, पर नहीं गुरमुखो, जिन्हां दी ड्यूटी सतगुर ने जिन्नी लाई हुंदी उन्नी निभा के जांदे हन। ये अरदास करिया करो महाराज उन्हां दे जीवन दे विचों कुछ तिल फुल साडी झोली च भी पा दिओ, सानू बख्शिश कर दिओ। अज ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वाले स्थान ते सतगुर ने तरस करके बिठाया। दाता जी असीं ओहो जे ते नहीं, पर तुहाडी किरपा होवे
खल मूर्ख ते पंडित करबो पंडित ते मुगदारी, भिखारी ते राज करावै राजा ते भिखारी। दाता तुसी किरपा करो ते तुसी ते तुछ मातर वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।